with innovation in corporate training. A record holder as the youngest corporate trainer, Ms. Towry's expertise is backed by certifications from Dell Carnegie, JCI, ZTWS. Her journey as a TEDx speaker, podcaster, and a motivational influencer showcase her passion for personal and professional development. Her energy and insights promise to bring depth and vibrancy to this discussion. Before we go ahead, I should remind you that this excellent discussion is going to span through for next 40 minutes with the fresher perspective for the change in dance in cinema. So before further ado, let me hand over this session to Ms. Towry. Hello, hello. Thank you so much, Alok sir. Thank you so much. Hi, everybody. Oh my God. Hi, everybody. A little bit of louder, man. Come on, सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है. यहाँ के लोग. Hi, everybody. अच्छा, so every time there are two things that I'm going to start with. Number one, मेरा खुद का YouTube channel है. मेरे YouTube चैनल की शुरुआत कोई स्पेसिफिक तरीके से होती है, तो हम जैसे ही पैनल के साथ शुरू करेंगे मैं वो डायलॉग बोलूंगी, उसके साथ फिर हम पैनल की शुरुआत करेंगे. नेक्स्टली, बिफोर वी स्टार्ट, कैन वी क्रिएटिवली से हाई टू संदीप सर एक बार? कह पाएंगे सब लोग? पर चैलेंज ये है कि एक नजाकत के साथ कहना है. बताऊं मैं प्रैक्टिस करके बताती हूँ. सो वी आर गोइंग टू से हिम हाय संदीप. कूल? Oh my God. Cool? Okay, let's try. संदीप सर बुरा नहीं मानेंगे. अब नहीं है संदीप सर. 1, 2, 3 and go. Hi संदीप. One more time. 1, 2, 3 and go. Hi संदीप. Thank you so much. So now finally we are going to start with this amazing panel. I am going to be the moderator for today's session and I'm really happy that I can see all the young minds here. Today we are going to talk something about dance, and to all of you who are watching this for the first time and who are watching me for the first time, I used to teach Zumba at Ginex Dance Academy. Chetan sir, अगर आप एक बार सबको hi बोल देंगे. Hi. So earlier my journey with dance started as Zumba. I used to assist my professional trainer there at Ginex Dance Academy, and today we have one of the finest choreographers with us. So sir, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास में है आपके लिए वो ये है that 1940 से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी डांस की, जितना मैंने स्टडी किया, बट ऑफ कोर्स यू आर द बेटर पर्सन टू आंसर मी. 1940 से क्लासिकल डांस का जर्नी स्टार्ट हुआ था, and then it has transformed into different levels. So can you just talk a little bit more about how do you see dance and how has dance evolved in the Indian history? Good evening, everyone. सबसे पहले तो I would say that yes, जिस तरह से हमारे देश में influences होते रहे हम लोगों के, उसके हिसाब से डांस में बदलाव आता रहा. So initially it was classical dance, and then slowly it moved to folk dances. उसके बाद में फिर western influence आने लगा, western dances आने लगे, और आज ज़्यादा ही influence हो गया है west का. And but I would say the mix between the two जो होता है, that is always best, because अगर हम अपने आप के झांक के देखते हैं, we are not fully western. कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर इंडियन संस्कृति सभ्यता अभी भी है, अभी भी दिवाली होली मनाते हैं हम लोग. तो हमारी जो संस्कृति है उसके साथ में जो बैलेंस करना, वो हमारे सिनेमा में कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है. और मैं मेरे जैसे कोरियोग्राफर को भी ब्लेम करूंगा, बिकॉज आई एम अ वेस्टर्न डांसर, और मैंने जहाँ भी कोरियोग्राफी की वेस्टर्न डांस में ही की. बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसको कहीं ना कहीं उसकी जो एक मर्यादा है बना के रखें, और वो शायद आजकल सिनेमा में मेरे हिसाब से कम हो गया है. ऑलराइट, मैंने हमेशा से डांस को 3 स्पेक्ट्रम्स में देखा है. सो नंबर 1 इज डांस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन, फॉर्म्स एंड इंटेंशन. This is what I have created as a definition for dance. So how do you perceive dance? Well, I see it a bit differently. I feel dance has got 5 E's. Alphabet E. Dance के 5 E's होते हैं. सबसे पहला is, which we all know, entertainment. Yes, that is one thing we all know. But उस पड़ाव से हम कितने लोग ऊपर निकल सकते हैं is the question. Second to me is education in dance. जो डांस इंस्टीट्यूट सर बैठे हैं यहाँ पे डांस इंस्टीट्यूट सिखाते हैं,
जहाँ पे आप डांस के बारे में पढ़ते हैं, उसके काउंट्स के बारे में, उसकी डिटेलिंग के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ डांस. द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डांस इज when it evolves and evokes something inside you. अपने अंदर कुछ भावनाएं पैदा होती हैं आपके डांस करते हुए और उसको आप बाहर लेकर के आते हैं. And then after evoking, there is empowering with dance. आपको डांस जो है वो सशक्त बनाता है. और लास्ट में जो आता है, that is enlightenment through dancing. कहते हैं ना, मदहोश हो गए डांस करते करते कि आपको पता नहीं चला क्या हुआ. एक बहुत कुछ प्रसिद्ध लाइनें हैं, बताऊंगा आपको. मजनू लैला की वजह से कहानी बन गया, मजनू लैला की वजह से कहानी बन गया. रक्स, दैट इज डांस, पहले जिस्मानी फिर रूहानी बन गया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डांस को, ताली जोर से बजा सकते हैं आप लोग, आराम से बजा रहे हैं, थैंक यू. सो पढ़ाव है डांस के. शायद हम लोग एंटरटेनमेंट में ही रुक के रह गए हैं. शायद उसमें से कुछ लोग एजुकेशन तक ही रुक के रह गए हैं. उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने डांस में और ज्यादा जाना पड़ेगा. और हर कोई शायद उसके पास समय नहीं होता है. हम लोगों के पास हमारा इतना व्यस्त रहता है, हम लोगों का समय का हम लोग नहीं कर पाते हैं. कुछ प्रोफेशनल डांसर्स, ओनली फ्यू ऑफ देम प्रॉब्ली विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट डांस जब आपको एक अदहोशी देता है ना, तब आप कह सकते हैं कि मैंने डांस से कुछ अचीव किया. कुछ ऐसे डांसेस फिल्मों में होते हैं जो आप देख करके कुछ आपके पास हमेशा रह जाते हैं, वो मूव्स जिसे कहते हैं ना हम लोग, आइकॉनिक स्टेप्स होते हैं डांस के. तो वो आइकॉनिक स्टेप्स जो आपके अंदर बस जाए, समा जाए, आई थिंक दैट इज एपिटोम ऑफ अ डांसिंग. All right. So now, the next thing that I really want to understand, that why have you chosen dance as a career, or going into the Bollywood industry? Why have you chosen this unconventional path of career? Well, I hope everybody can choose their career because I'm very happy being a dancer and a choreographer. But शुरुआत उसकी जो हुई थी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं नाइट क्लब में था. एंड मैं मेरी डांसिंग की ट्रेनिंग खत्म करके जर्मनी से वापस आया था और मैं नाइट क्लब में डांस कर रहा था मुंबई में. और मुझे पीछे से आके एक लड़का टैप करता है शोल्डर पे और बोलता है, आप बॉलरूम डांसिंग करते हैं? यस, मैं ट्रेंड हूँ उसमें. आप मुझे कल आके मिल सकते हैं, ये रहा मेरा कार्ड. तब तो मोबाइल नहीं होते थे इतने, तो आप मुझे फोन करिए और कल हम मिल सकते हैं. सो मैं नेक्स्ट डे गया और उन्होंने मुझे बुलाया एक ऑफिस में. और आई वॉक्ड इनटू शाम बेनिगल जी's ऑफिस, लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री. और उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और उसका नाम है जुबैदा. उसमें है करिश्मा कपूर, मनोज बाजपेयी, रेखा जी, और आप उसकी हमारे लिए कोरियोग्राफी कर दीजिए, हम मदद करिए कोरियोग्राफी करने की. मुझे लगा मुझे मदद करनी पड़ेगी कुछ महीनों के लिए. मुझे उससे पैसे भी मिल गए और वो पिक्चर हिट भी हो गई, उससे अवार्ड्स भी मिल गए. एंड जैसे कहते हैं गाड़ी निकल पड़ती है फिल्मों की, ऐसे निकल पड़ी. एंड अभी करते करते ऑलमोस्ट 25-30 साल होने आए इंडस्ट्री. Amazing. But today here, if you see, typical Indian families में there is always a skeptical mind towards such unconventional career streams. अगर मैं भी अभी अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँ कि मम्मा देखो मुझे डांस करना है, तो she'll be a little bit hesitated और वो बोलेगी कि स्नेहा, why dance? You have 10 different other options that you can go and select. So why? I mean, what is that one thing that you can talk about? Why one should choose dance as a career, or who is the right one to choose dance as a career? You know, when I wanted to dance and make it as a career, my father said no for it. My mother was the only one उन्होंने कहा कि आप ट्राई कर सकते हो. पर लेकिन सब लोग मेरे घर में except my mother was against it. And I don't blame them. पैसा शायद ना मिले, शायद आपको काम ना मिले, हम कोई जानते नहीं किसी को इंडस्ट्री में, आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई डांसिंग नहीं है. सो इट्स इज पॉसिबल कि शायद आप नहीं कुछ कर पाए. और हमारे देश में ऐसा है कि आप लोग बोलते हैं कि घर संभालना है, पैसे कमाने हैं, फैमिली बनानी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चे पैदा होंगे, तो कैसे देखा जाएगा. सो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर राइट. बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन हियर इज दैट आप लोग जब तक माँ बाप का आशीर्वाद ना हो कुछ मत करिएगा उनके खिलाफ. एंड आई वेटेड ऑलमोस्ट 2 years for my father to say कि हाँ आप कर सकते हैं और आप ट्राई करिए. उसके बाद में जो मेरा करियर थैंक गॉड शुरू हुआ, आज मेरे पूना के क्लासेस जो है मेरे फादर हैंडल करते हैं. सो आई थिंक दैट जस्ट स्पीक्स दैट इट्स वंडरफुल इफ यू डू समथिंग ऑफ योर चॉइस, पेरेंट्स सपोर्ट विल कम टू यू. So if you were in the shoes of a 20 or a 21-year-old, तो आप आपके करियर का रोड मैप किस तरीके से बनाते हैं?
if at all I had to go. 20-year-old, I would say I was still busy studying and dance was only hobby. Yeah. पर एक बात है, अगर आपको डांस को करियर बनाना है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. Dance is not the glamorous clothes and the big makeup that you put. Dance is about the मेहनत. It is 1% of the glamour and 99% of मेहनत. That is what dance is. So अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते. But let me take you a little back. You said changing trends of dance in the country. मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहूँगा. Are you ready to watch a video for me? Okay, this video आप play करिए please. It will tell you how the dance in our country has completely changed. जरूर से लगाइएगा please. How we used to have different types of dances and how बजाइए किस तरह से पहले डांसेस होते थे और कैसे उसमें बदलाव आना शुरू हुआ. I hope all of you can see from that side. And like you said correctly, classical driven, but so classical driven. There was no Bollywoodized Bharatanatyam. It was a typical classical, means purity of dance was important that time. आज purity शायद चली गई है. एक जमाना था जहाँ पे एक्ट्रेसेस को सिलेक्ट किया जाता था कि वो डांसर हुआ करती थी. आजकल बोलते हैं हम डांसर बना देंगे उनको. पहले डांसर होना महत्वपूर्ण था, अभी वो चेंज हो गया. And then Western influence came in the 70s, 60s, late 60s, 70s. But even in this dance form, if you ever get talking to Helen Auntie, she will say, training शायद ना ली हो, but उससे पहले ballet सीखना जरूरी था. So how important it is to any kind of dance you do, आपको कहीं ना कहीं पे classical रखना का base रखना, चाहे Western classical हो या Indian classical हो, important हो जाता है. And then of course Western became so popular कि कहीं ना कहीं classical छूट ही गया बिल्कुल. And let me remind you, if you look at these dances, you will realize John Travolta was doing these dances. So it was not Mithun Das moves, really. They were John Travolta's moves which were copied into Bollywood. So we were very, very Western influenced with cinema. Tamak Dawar was the one who introduced this dance form in the late 1990s. So हर choreographer एक अपनी style लेकर के आता है, and that's what I think becomes special thereafter. By the way, also one of the most expensive songs in Indian cinema. One of the most expensive songs in Indian cinema is this one. Why so would be my question to this. Well, I was a part of this song choreography, so if you like this song, please clap for me. European dances like the Spanish dances, or you'll see some more coming ahead. We try to bring it in as choreographers. You will see me also in this dance behind. Can you see that small behind in the background dancer? मेरा डांसर नहीं आया था उस दिन शूटिंग पे, और फिर मुझे कुछ लास्ट मिनट ऑप्शन तो मैं खुद डांसर बन के पीछे डांस करना पड़ा.
This was my first film, Zubeda. This is also one of my songs which got me the Screen Award as well. काफी पॉपुलर हुआ ये गाना, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. I think what's important is the purity of the dance should be maintained, which honestly speaking nowadays I don't see that happening. And now this dance has become very popular. Everybody is doing hip hop and all these styles of street dances. This was another film of mine called Kites with Hrithik Roshan, and this song called Fire, which was very very popular, and I choreographed this number with Hrithik. So you saw how trends were changing from classical dances to folk dances to newer forms like these. And yes, we have to blame the artists and blame choreographers like us, whatever is happening, good, bad, however we want to put it. And this is the most popular dance today. I think आप लोग सब ये dance form करते हैं आजकल. सब क्लासेस में सब तरह यही डांस भी बहुत सिखाया जा रहा है. टीवी पे भी आप लोग यही देखते हैं कि आज this is a new trend going on. Well, so this is what I meant. ताली बजा दीजिए वीडियो के लिए एक बार सब लोग. See, if you must have realized how the trends are changing, but कहीं ना कहीं पे as choreographers, as dancers, अगर आप लोग डांस करते हैं, मैं बोलूँगा कि डांस की जो प्योरिटी है, डांस का जो ग्रेस है, उसका जो एलिगेंस है, वो आप मत छोड़िएगा, because then the whole point of dance goes away. अभी मेरा एक सेशन ऊपर हो रहा था, where I was talking about how one filmmaker, a very famous filmmaker, came to me and said, मैं चाहता हूँ आप कोरियोग्राफी करिए एक, जहाँ पे हमारी जो आइटम नंबर की लड़की है वो आएगी एक भैंस पे बैठ करके, और आप लोग और शॉर्ट कपड़े पहनेगी और अपने पैरों से वाइन गिराएगी और वो जो विलन है वहां से वाइन पिएगा. And I said no to him for doing this particular song because I feel जो डांस की अश्लीलता है वो मुझे नहीं दिखानी है. So it's very important as dancers, आप लोग हैं या फिर कोरियोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप ये मत भूलिए कि हम लोग जो हैं वो डांस के थ्रू संस्कृति दिखाते हैं, सभ्यता दिखाते हैं, वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए. Agreed. So the video that you have shown was quite interesting because we get to know all the different dance forms. One dance form that I would want you to talk about is Zumba. I think these days कोविड के बाद से आंटीज और लेडीज के लिए जुम्बा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है. दे कीप ऑन रजिस्टरिंग देमसेल्व्स फॉर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स और घर बैठे बैठे वो लोग रोज वो जुम्बा करते थे. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जुम्बा? To me, Zumba is a fitness form. It is not a dance form. Zumba में आप अलग अलग टाइप के डांसेस मिला करके आप उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं. It's more of a fitness form. पहले हम लोग एरोबिक्स होती थी लेट 1990s में, एंड बाद में उसको चेंज होते होते धीरे 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 हम डांस फॉर्म ऐड करते गए, और अभी हमने उसमें लैटिन अमेरिकन डांसेस को डाल करके हम लोग जुम्बा करते हैं. Zumba to me is a way to stay fit. It's a great way to stay fit, but it is not a dance form according to me. All right. So when I went for my first TED talk, the topic given to me was people, perspectives and perceptions. So those were the 3 P's of my life, और वो 3 P's के according फिर मैंने अपना story line बना के अपना TED talk prepare करा था. But I always believe that for an artist, what is the most important thing is to build the 4th P, that is called as the personal brand. So how important is it for an artist to build his or her own personal brand according to you? Oh, it is the most important thing because आपका जो नाम है वो आप ही के नाम पे होगा. एकेडमियां जो है वो बंद हो सकती हैं, आपका नाम बंद नहीं होगा. नाम will always last. जैसे लता मंगेशकर गाना था ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. सो आपकी डांस मूव्स ही आपकी पहचान है, आपका डांस ही आपकी पहचान है, तो आपको उसको बनाना ही पड़ेगा. एक जमाना था जब हम लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे, वो लोग पढ़ते थे और जानते थे हमारे बारे में, या स्टेज परफॉर्मेंसेस देखते थे. आजकल तो बहुत आसान हो गया है.
आपके पास फोन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास कैमरा आपके हाथ में, एडिटिंग आपके हाथ में, सब आपके हाथ में ही है। और फॉलोअर्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आप उसको जाने किस तरह से किया जाता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू बिल्ड योर ब्रांड टुडे, एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर कैन बिल्ड योर ब्रांड, एंड यू मस्ट डू दैट, especially if you want to say something, be it dance, be it music, be it singing, be it anything, you want to speak about it. Building up your brand is very important. आज हम लोग 6th edition पे बैठे हैं यहाँ पे ऑरेंज लिटरेचर फेस्टिवल के, because a brand has been built up. So you have to take initiative. और आप as a dancer, you are everything. You are an admin person also, you are a creative person also, you are a designer also, you are a stylist also, you are a makeup artist also. आप हर कुछ अपने आप करना ही पड़ता है। जो लोग आप में से यहाँ डांस मंच पे जाके डांस किया होगा, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। खुद का मेकअप लगाओ, खुद के कपड़े खरीदो, खुद के कपड़े टेलर करवाओ, पहनो, स्टाइल क्या बनाना है, क्या जूते पहनने, क्या चप्पल पहननी, क्या नहीं पहनना है। यू आर एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको वो सारे जो जोन्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। अगर आपका डांस स्कूल रहेगा, जैसे यहाँ सर बैठे डांस स्कूल है उनका, फीस कलेक्ट करनी होगी, अकाउंट्स कीपिंग करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पॉपुलैरिटी करनी पड़ेगी, सब आपको अकेले ही करना। एंड दैट इज ब्रांड बिल्डिंग। So you have to be one man army, and if you do that very well, you will definitely make a name for yourself. You will get recognition, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से हो, and I think if your work is good, it will always remain with you. एक बहुत एक श्लोक है संस्कृत में, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भात्र भाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एव नित्यम नृत्य विद्याधरम सर्वधन प्रधानम। आप जो है, आप कुछ भी आपके पास एजुकेशन मिले, आपको जो डांस की एजुकेशन है वो आपके हाथ से कभी नहीं जाएगी। कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई राजा नहीं उसको बांट सकता। थैंक यू सर। बट उसको आपके पास वो हमेशा वो नॉलेज रहेगी। तो उस नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपकी वो नॉलेज बढ़ जाती है, आपका जो आपने कहा योर पॉपुलैरिटी है, ब्रांड बिल्डिंग है, वो हमेशा आगे आएगी अगर आपका काम अच्छा। Perfect, perfect. So it was like an eye-opening conversation, I must say. A very small time we have gotten, but then I could really, I mean, I would be really wanting to have such conversation again with you. But before we conclude this conversation, I have a one last question for you, and that is, what would be that one single message for all the parents who are sitting here, or maybe to everybody who would be watching this live? What could be that one message for somebody who is like not okay with dance as a career, and also for them who are like really passionate to make their or build their career here in the dance industry? Well, my message is, I'm a dancer, so I'll talk from creative point of view. अगर आप 5 पक्षियों से 5 चीजें सीखते हैं, you can be a good dancer or you can be a good human being, whatever you want. So I'll quickly go with the first one. First one is like a crow. काक स्नानम बोलते हैं ना, कौवा क्या करता है, आता है, फटाफट नहाता है और चला जाता है। Which means your personal things have to be less. आज पार्टी है, आज शादी है, मैं डांस नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये बहाने हैं। So you have to be doing your rehearsal, your riyaz every day to be a good dancer. Your personal things have to be less. Your work has to be more. So from a crow you learn. Second one is from a woodpecker. कटफोड़वा बोलते हैं। क्या करता है, जब पे बैठता है और खट 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 1000 बार मारता है, तब जाके छेद होता है। आजकल हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप करते हैं 2 दिन का, हाँ कुछ स्टेप सीख लेते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट अ डांसर इज। अ डांसर इज आप इतना वो डांस का स्टेप करिए कि आपकी वो बॉडी में बस जाए, मसल मेमोरी बोलते हैं आप लोग, मसल मेमोरी में बैठ जाए। एक कहते थे ना हम लोग, प्रैक्टिस टिल यू गेट इट राइट, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग। प्रैक्टिस टिल यू डोंट गेट इट रॉन्ग। तो आप इतना प्रैक्टिस करिए कि वो गलत ही ना हो। वो है कटफोड़वा से हम लोग सीख सकते हैं, फ्रॉम अ वुडपेकर। थर्ड वन इज फ्रॉम अ स्पैरो। कभी आपने कोई मोटी स्पैरो देखी है? इट्स ऑलवेज अ फिट स्पैरो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना आहार जो है वो आप ध्यान रखिए, डाइट अच्छा फॉलो करिए, बिकॉज डांस फील्ड जो है इट्स अ वेरी फिजिकल फील्ड। उसमें आपको ढंग डांस करना पड़ता है, स्टेज पर भी, बीच बैक स्टेज पर भी, मंच पर भी हो या फिर आपके रिहर्सल हॉल में भी हो। So fit is very important. Take care of your body through your diet, through exercise, for everyone, not just for a dancer, but for everybody else. So I spoke about crow, woodpecker, a sparrow. The fourth one is like a crane, bagula. एक पैर पे खड़ा होता है
और लेजर शार्प फोकस से को पकड़ता है. So as a dancer, your focus is very important for your career. आजकल especially today's children, Instagram खोलिए, you can spend 5 hours on Instagram, whole day on Instagram. Drugs इतने पॉपुलर हो गए हैं, ड्रिंक्स स्मोकिंग इतना पॉपुलर हो गया है, कहीं ना कहीं हम हमारा फोकस हम लोग भूल गए कि हम लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर, हमें क्या सीखना है, हमें क्या आगे बढ़ना है. घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमारे क्या फोकस लाइफ का क्या है, आपको कहीं ना कहीं पे वो धुंधला पड़ गया है. सो लाइक अ बगुला, लेजर शार्प फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द लास्ट वन इज लाइक एन ईगल. आप लोग डांस करेंगे, आप लोग एक्टिंग करेंगे, आप लोग करियर बनाएंगे, अपना जो भी करते हैं आप लोग, पॉपुलैरिटी मिलेगी, प्रसिद्धि बहुत मिलेगी, पर जो याद रखिएगा, डांसर जो है वो ग्राउंड पे नाचता है, आसमान पे नहीं नाचता. जो चील होती है उसकी आंखें जमीन पे रहती है, चाहे सबसे ऊपर क्यों ना उड़े. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड. थैंक यू. हम जोर से ताली नहीं बजाते हैं आप लोग. सो अगर आप ये 5 चीजें सीखते हैं मैम, आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ को फोकस रखें, और उस फोकस को पाने के लिए जो भी हो आपको लाइफ में करना हो, आप उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ें. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. They always say, right? Famous lines from Mr. Bachchan. So you must remember that. I think things will always work well. And one message for the parents. Oh, the parents. The biggest message I would give is please support your children, because अगर support ना मिलेगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. एंड आपका आशीर्वाद अगर रहेगा वो ही आपको आगे ले जाएगा, और अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो कौन देगा आशीर्वाद. सो आई अंडरस्टैंड कभी कभी आपकी वरीज होती है. मैं भी पेरेंट हूँ, आई हैव 3 बॉयज, एंड यू फील मेरा बच्चा क्या करेगा, पैसा कैसे कमाएगा, घर कैसे चलाएगा, हाउ विल ही रन हिज हाउस, हाउ विल ही व्हेन ही हैज हिज वाइफ और हिज हस्बैंड, हाउ आर दे गोइंग टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज जो दिल से इंसान करता है ना, उसमें बहुत खुशी मिलती है. और प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, एंड आई होप आपके बच्चे जो है आगे बढ़े, व्हाटएवर दे डिसाइड. सो आपका हाथ रखिए सर पर, एज अ बैकबोन खड़े रहिए पीछे, क्योंकि जो कहते हैं ना फैमिली होती है, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द रूट्स ऑफ लाइफ, एंड पॉपुलैरिटी आर द फ्रूट्स ऑफ लाइफ. वही पेड़ जो है उसमें अच्छे फल निकलते हैं जिसके रूट्स मजबूत हों. सो आप रूट्स हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप खड़े रहिए उनके साथ में, उनको गाइड करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तभी उनके फ्रूट्स निकलेंगे. Amazing, amazing. So I must say that you are an amazing speaker and an orator as well. Thank So you. at last, everybody, we have a small activity to do. Yes, I cannot let you all go without dancing. Yes, Dance के exactly. बारे में हम Let's बात कल dance. करते हैं. Let's Let's dance dance. together. Yes, so I'm going to show you some steps. आप लोग खड़े हुए अपनी जगह पे, मैं आपको उन जगह से हटवाऊंगा नहीं, खड़े रहकर हम लोग स्टेप करेंगे. Are you ready with me? चलिए. Very very easy moves we'll do, okay? जगह पे खड़े हो जाइए. मेरा गाना है, so I will be happy if you dance to my song, to my tunes. The song is Darling आंखों से आंखें चार करने दो. सुना है आपने गाना? प्रियंका चोपड़ा ने इसको इसके पिक्चराइज किया गया था, विशाल भारद्वाज जी की पिक्चर थी, सात खून माफ. मुझे इसके पुरस्कार भी मिला है, तो मैं चाहूंगा आप लोग सब इसके ऊपर डांस करिए. So, जब हम कहते हैं डार्लिंग, लेट्स शो डार्लिंग विद अ हार्ट. अरे रुक जा बेटा. डार्लिंग विद अ हार्ट. अरे उनको बना ये सर पैंट ऊपर मत, रुक जाओ, मैं बोलूंगा कब बजाना है गाना. यहाँ पे हार्ट बनाइए, डार्लिंग. ओके, फिर राइट हाथ से आंखों से आंखें चार करने दो. सिंपल. चलिए मैं बोलता हूँ, फिर से करेंगे. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. थोड़ा हिलिए भी, ऐसे खड़ा ना, ऐसे करना, हिलना वैसा. थोड़ा हिलेंगे. मैडम आप तो बैठी हुई हैं दोनों सामने फ्रंट रो पे, इधर आओ ना, इधर अच्छे आओ. बैठी थी वाला बात. चलिए चलिए उठिए, मैं कितने कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ. सो थोड़ा मूव करेंगे. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. ओके, नेक्स्ट लाइंस क्या है? रोको ना रोको ना. रोको ना रोको ना, को फ्लाइंग किस देंगे, प्यार करने दो. ओके, वंस मोर. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो. अरे किस करो ना ठीक से. ऐसा कौन किस करता है? ऐसे करो.
यस अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में होगा तो अच्छे से किस निकलेगा हाँ तो डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो रोको ना मुझको प्यार करने दो ठीक है ये इजी है मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा जल्दी एक और स्टेप एक हाथ ऊपर राइट हैंड एक हाथ सामने और यहां से हम लोग टर्न करेंगे पीछे ऑल ऑफ अस और बेस्ट पार्ट इन द बॉलीवुड मूवीज क्या है तो मिलाना ओके सो वी विल टर्न एंड वी विल शेक एंड बुलबुलो का हाथ ऊपर जाएगा ठीक है आसान है मुझे देखिए करिएगा म्यूजिक बजाइए Are you all ready? Are you all ready? Yes or no? Are you ready? पीछे are you ready? Are you ready? Listen, are you ready? चलिए याद रखिए कोरियोग्राफी क्या है फील करना है आपने करना है and we go हाथ ऊपर दूसरा हाथ ऊपर चलो भूल गया कैसे हाथ ऊपर Wonderful. Thank you so much, everybody. Thank you so much. It was lovely being with all of you here at the Orange City Literature Festival. It's a pleasure being with all of you, and thank you so much. What a spellbinding session. And we thank Mr. Sandeep Sabarkar and Ms. Sneha Tawri for this really immersive experience. Thank you very much.